حاضرین، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دلکش ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے، مومن کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ اور پیارے نبی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ خیر صرف مومن ہی کے لیے، اس سے ہٹ کر کسی اور کے لیے خیر نہیں ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاملات میں مومن کے لیے خیر کیسے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر مومن کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملتی ہے، اللہ کی جانب سے کوئی تحفہ ملتا ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ دو باتیں مومن کی صفات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی کہتے ہیں جب مومن بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں خیر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے مصیبت پہنچنے پر مومن بندہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں خیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مومن کا معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں، گزشتہ خطبے میں صبر کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کے خطبے میں شکر سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا، رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ پروردگارہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور جو باتیں آپ سن رہے ہیں، مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ ان کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کے قصے اللہ نے بیان فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کو نعمتیں دے کر بھی آزمایا، اور کئی پیغمبر ایسے بھی گزرے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کیا اور ان کی آزمائش کی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات سے جو عبرت، جو نصیحت ہمیں ملتی ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام اللہ کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کرتے تھے۔ جیسے ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں جب اللہ کی جانب سے پیغمبروں کو کوئی نعمتیں ملتی تو پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ان نعمتوں پر۔ جس طرح سے ہم دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمیں ملتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ملتی ہے۔ اور ان سارے پیغمبروں کی سیرتوں کا مجموعہ اگر ہم دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جب کبھی مصیبت پہنچی آپ نے صبر کیا، جب کبھی کوئی نعمت ملی آپ نے شکر ادا کیا۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تو پیغمبروں کی صفت ہے۔ اور اسی طرح سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے مطابق یہ مومنین کی بھی صفت ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ جو صفت ہے، یہ مومنین کی جو صفت ہے، یہ شکر ادا کرنا، یہ توفیق اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ شکر ادا کرنا، نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی جانب سے توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں دلیل کے طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس سے کہا کہ تو اتر جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا، اللہ سے دعویٰ کیا کہ پروردگارہ تیرے بندوں کو میں بھٹکاؤں گا، ہر طرف سے ان کو میں
अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यानी कि अक्सर बंदे ऐसे होंगे जो नाफरमानी करते हैं। शुक्रगुजारी करने वाले कौन होंगे? जिनको अल्लाह की जानिब से तौफीक मिल जाए। और याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस से कहा था, शैतान से कहा था, मेरे जो खास बंदे हैं तो उन्हें बहका नहीं सकता, मेरे जो खास बंदे हैं तो उन्हें बहका नहीं सकता। और ये बात याद रखें, वही खास बंदे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की जानिब से जिन्हें तौफीक मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर शुक्रगुजारी करें। और ये भी याद रखें कि शुक्रगुजारी करना ये अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का जरिया है। अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह की शुक्रगुजारी करना, जब बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से राजी हो जाता है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, व इन तशकुरु यरज़हु लकुम, व इन तशकुरु यरज़हु लकुम, जब तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हें पसंद करेगा, तुम अल्लाह तबारक व तआला के पास महबूब हो जाओगे। हाज़रीन, इसी तरह से हम याद रखें, ये शुक्रगुजारी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को रोकने वाली चीज है। याद रखें, जो बंदे अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार होते, अज़ाब ऐसे बंदों पर नहीं आता। वो बंदे जो नाफरमान होते, वो बंदे जो नाशुक्रे होते, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाबात में मुब्तला कर देता है। जिस तरह से हम देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन नाशुक्री उन्होंने की, अल्लाह की नेमतों की कदर उन्होंने नहीं की। और उसके बाद देखें आप अल्लाह ने कैसे कैसे अज़ाबात में उनको मुब्तला कर दिया। और ये भी याद रखें, ये शुक्रगुजारी है जिसके जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बच सकते हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 147 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी करो और ईमान ले आओ। ईमान लाओ और अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करो तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा? तो हाज़रीन याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को रोकने वाली चीज, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद करने वाली और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाली चीज यही शुक्रगुजारी है। जब बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है तो फिर याद रखें, अल्लाह का अज़ाब उससे रुक जाता है और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाता है। हाज़रीन, अब एक बात मैं आपके सामने रखूं, ये शुक्रगुजारी जो इंसान के लिए जरूरी है, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का जज्बा इंसान के दिल में कैसे पैदा हो? हम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते तो फिर अल्लाह की शुक्रगुजारी कैसे करें? अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का जज्बा हमारे दिलों में कैसे पैदा हो? तो फिर याद रखें, उस आयत को याद करें। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह की नेमतों का अगर तुम शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने उतनी नेमतें तुम पर अता फरमाई, अल्लाह ने इतनी नेमतें तुमको अता फरमाई। कितनी नेमतें, कैसी कैसी नेमतें, आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। तुम अपने आप के अंदर, अपनी जानों में, अपने नफ्सों में झांक कर देख लो कि अल्लाह की क्या क्या नेमतें तुमको अल्लाह ने अता फरमाई। ये आँख अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। सोचने समझने की सलाहियत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये हाथ हम जिनसे चीजों को पकड़ते हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये पैर जिनसे हम चल कर जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखें, ये सीने में धड़कता हुआ दिल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो फजा हमें मिल रही, ये साफ शफाफ हवा जो हमें मिल रही है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखें, आप अपने आप में गौर करते चले जाएं, जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आपको इस नेमत का अंदाजा उस वक्त होता है जब आप किसी ऐसे शख्स को देखें कि जिसके जिस्म के किसी हिस्से पर फालिज पड़ जाए। आप देखें क्या हाल उसका हो जाता है। ये हाथ अभी तक तो हल रहा था, चीजों को पकड़ने वाला ताकत अल्लाह ने उसके अंदर अता की थी और कैसी कैसी सलाहियतें, काम काज वो इस हाथ से करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन अल्लाह का फैसला हुआ, हाथ काम करने से रुक गया। अब आप उस चीज को देखें और अपने हाथ को देखें कि अल्लाह की नेमत अभी बरकरार है, अल्लाह की नेमत अभी बरकरार है। आप देखें, धड़कता हुआ ये दिल अगर थोड़े से लम्हात के लिए अगर रुक जाता है तो हम कहते हैं कि इनका वक्त खत्म हो चुका है, इंतकाल हो चुका है। ये धड़कता हुआ दिल आपके सीनों में अभी भी मौजूद है। ये अल्लाह तबारक
की नेमतें खत्म होने वाली नहीं, अल्लाह के कलिमात खत्म होने वाले नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हम पर हैं। तो हाज़रीन, इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, शुक्रगुजारी का जज्बा हमारे दिलों में क्यों नहीं होता? हमारे दिलों में शुक्रगुजारी का जज्बा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देखते, आगे वालों को देखते, ऊपर वालों को देखते। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़रू निअमतल्लाहि अलैकुम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अपनी नजरों से अगर तुम कभी देखना चाहते हो, अपने ऊपर वालों को ना देखो, अपने से ज्यादा मालदार लोगों को ना देखो, अपने से ज्यादा बासलाहियत लोगों को ना देखो, अपने ऊपर के तबकात को, अपने ऊपर के दर्जात को ना देखो। उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, जो तुमसे दर्जे में कम है, जो तुमसे ताकत में कम है, जो तुमसे माल दौलत में कम है, जो तुमसे नेमतों में कम है, जो तुमसे सलाहियतों में कम है, ऐसे लोगों को देखो। शुक्रगुजारी का जज्बा तुम्हारे दिलों में पैदा होगा कि अल्लाह ने हमें इतना बेहतर रखा, अल्लाह ने हमें इतना अच्छा रखा। अगर आप अपने से ऊपर के तबकात को देखेंगे, अपने से ज्यादा मालदार लोगों को, अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को, अपने से ज्यादा रुतबे और मुकाम के लोगों को देखेंगे, तो याद रखें नाशुक्री का जज्बा आपके दिलों में पैदा होगा। और आज यही चीज है जिसकी वजह से आज हम नाशुक्री में मुब्तला है। और याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का अगर हम सही इदराक करना चाहें, और ये बात याद रखें कि आज नाशुक्री का एक जज्बा ये भी है कि आज अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई हैं, अल्लाह की उन नेमतों को हम नहीं देखते जो बाकी है, उन नेमतों को हम नहीं देखते। वो नेमतें जो हमसे छिन गई उनको देखकर हम बस अफसोस करते रहते, फुला चीज चली गई, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मान लीजिए, मिसाल मैं आपके सामने दूं, अभी जो हालात हम जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, तकरीबन 6-8 महीनों से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों के हालात बिगड़ गए, यकीनन माली एतबार से, मुआशरती एतबार से, मुआशी एतबार से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन याद रखें, आज हम सिर्फ उसी नुकसान को देख रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री कर रहे हैं। कोई आपसे पूछता है कैसा कारोबार चल रहा है, आप कहते हैं लॉकडाउन से पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं चल रहा, फुला ऐसा फुला वैसा। आपसे कोई कहे कि घर में हालात कैसे, कहते कि नहीं, जब से हालात खराब है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। याद रखें, आप उन नेमतों को देखें, उन नेमतों को देखें जो आपके अंदर बाकी है, जो अल्लाह ने आपके अंदर अभी बाकी रखा है। आपका घर आपके पास बाकी है, आपके अहल-व-अयाल आपके पास बाकी है, आपके बीवी बच्चे आपके पास बाकी है। क्या क्या नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दे रखी है। मान लीजिए, मिसाल आपके सामने रखता हूँ, 4 बच्चे अल्लाह तबारक व तआला ने दिए, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला इनमें से किसी एक को छीन लेता है, अल्लाह इसमें से किसी एक को छीन लेता है। सारी जिंदगी इसी पर अफसोस, सारी जिंदगी इसी का गम, फुला नेमत हमसे चलेगी, फुला ये चला गया, फुला वो चला गया, ऐसा हमारे साथ हो गया, वैसा हमारे साथ हो गया। बकिया जो 3 नेमतें हमारे पास है, उनकी शुक्रगुजारी कौन करेगा, उनकी शुक्रगुजारी कौन करेगा? तो हाज़रीन, आज एक बहुत अहम चीज ये है कि आज हमसे जो छिन जाता है, हम उसी के पीछे पड़े रहते और कहते कि ये चला गया, वो चला गया। जो नेमतें हमारे पास बाकी है, उनकी शुक्रगुजारी कौन करेगा? उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कौन करेगा? तो हाज़रीन, याद रखें, जरूरी है अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को शुमार करें। और याद रखें, उसी वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी कर सकते जब हमें इस बात का एहसास हो कि क्या क्या नेमतें अल्लाह ने अता फरमाए, क्या क्या नेमतें अल्लाह ने अता फरमाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बार-बार अपनी नेमतों का तज़किरा करते हुए अल्लाह कहता है, ये जो पानी अल्लाह ने तुम्हें दिया, ये अल्लाह की नेमत है। ये सड़कें जो अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ये अल्लाह ने जो फर्श तुम्हारे लिए जमीन को बिछा कर रख दिया, ये अल्लाह की नेमत है। ये आसमान जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, ये अल्लाह की नेमत है। ये सूरज की धूप, ये चांद की ठंडक, और आप देखें महीनों का, मौसमों का बदलना, दिन रात का बदलना, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ये बीवी बच्चे अल्लाह की नेमत है, ये माल और दौलत अल्लाह की नेमत है, ये रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, ये खेतियां, ये फल, ये तरकारियां, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। एक एक चीज का आप शुमार करते चले जाए। तो हाज़रीन, इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज के इस्तेमाल के बाद दुआएं सिखाई। खाना खाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, लिबास पहनो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठंड के मौसम से हम गुजरते, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सलाहियतें इंसान को दी हैं कि हर मौसम से बचने के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए तैयार कर लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें। तो हाज़रीन, इन नेमतों को समझना चाहिए, इन नेमतों में गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह कहता है कि अल्लाह की दी
तैयार किए हैं, इन नेमतों को देखो, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करो। हाज़रीन, एक और बात मैं आपको बताऊं, नाशुक्री जब इंसान करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। आज हम नाशुक्री में अगर मुब्तला है तो फिर सुन लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाशुक्री के सिलसिले में क्या क्या बातें बयान फरमाई। नाशुक्री कौन करता है? नाशुक्री वो इंसान करता है जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को नहीं देखता। और याद रखें, जितना इंसान नाशुक्री करता चला जाए उतनी नेमतें उसकी खत्म होती चली जाती है। नेमतों पर शुक्रगुजारी बंदा करता है, नेमतों में इजाफा होता चला जाता है। और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अगर नाशुक्री करता है तो फिर वो नेमतें भी छिन जाती हैं, खत्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह की नेमतों पर अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूंगा, और ज्यादा मैं तुम्हें अता करूंगा। व लइन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की तुमने कदर नहीं की, नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर याद रखो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और कैसा अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला का आता है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले जिन नेमतों की बंदे नाशुक्री करते हैं उन नेमतों को अल्लाह सबसे पहले छीन लेता है। सबसे पहले अल्लाह उन नेमतों को छीन लेता है और उसके बाद चलकर बंदे को एहसास होता है कि अब तक मेरे पास ये नेमत थी लेकिन अब छीन गई। जब तक नेमतें होती है एहसास नहीं होता, अल्लाह की नेमतें जब तक होती है उनकी कदर नहीं होती। जब नेमतें छिन जाती हैं, जब एहसास होता है कि फुला नेमत भी अब तक हमारे पास थी, तो हाज़रीन याद रखें, अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी करेंगे और ज्यादा नेमतें मिलेंगी। और इसी तरह से अगर नाशुक्री करते हैं तो फिर याद रखें कि वो नेमतें खत्म होती चली जाती हैं। और ये भी याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रगुजारी का तरीका भी हमें बताया है। मालूम हुआ शुक्रगुजारी करना है, नाशुक्री से बचना है, लेकिन अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी कैसे करें? अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई। अपने जिस्म में आप देख लें, बस कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी हम कैसे करें? अल्लाह की शुक्रगुजारी हम कैसे करें? जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है उसकी शुक्रगुजारी कैसे करें? तो सबसे पहली बात ये याद रखें, नेमतों की शुक्रगुजारी का तरीका ये है कि जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई उसका सबसे पहले सही इस्तेमाल करें। सही इस्तेमाल उसका होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत की शक्ल में नेमत अता फरमाई, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ने रुतबा, मुकाम, पोस्ट अल्लाह ने अता फरमाया, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ने आंखें दी, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। आप एक एक नेमत देखते चले जाएं, क्या क्या नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है, उनका सही इस्तेमाल, यही अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का एक जरिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की शुक्रगुजारी का एक तरीका है। और उसके बाद मैं आपको और भी तरीके बताऊं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, सिखाया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में जाग कर अल्लाह की इबादत करते, तहज्जुद, नवाफिल का एहतमाम करते। इस कदर एहतमाम करते, इस कदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। हजरत आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में वर्म आ जाते, अल्लाह के नबी के पैर सूज जाते, मोटे हो जाते, खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हुए नमाज पढ़ते। हजरत आयशा पूछती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो चुके, फिर आप इतनी ज्यादा इबादत क्यों करते हैं? हजरत आयशा के इस सवाल पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने क्या क्या नेमतें मुझे अता फरमाई, इस दुनिया में अल्लाह ने कितना बड़ा मुकाम मुझे अता फरमाया, अल्लाह ने खैर कसीर से, इन्ना आतैनाकल कौसर से अल्लाह ने मुझे नवाजा, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो मालूम हुआ ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का एहतमाम करना, इबादत करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का एक तरीका है। और इसी तरह से आप याद रखें, रोजा रखना अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी का एक तरीका है। अल्लाह ने तो आपको कोई नेमत अता फरमाई, आपका कोई काम हो गया, शुक्राने के तौर पर आप रोजा भी रख सकते हैं। मिसाल मैं आपके सामने रखूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा को फिरौन के जुल्म से, इस्तिबदाद से अल्लाह तबारक व तआला ने नजात दी, शुक्राने के तौर पर हजरत मूसा ने रोजा रखा था और उसी को आशूरा का रोजा कहा जाता है। प्यारे नबी को मालूम हुआ तो नबी ने कहा कि मैं भी रोजा रखूंगा। तो हाज़रीन मालूम हुआ शुक्राने के तौर पर रोजा भी रखा जा सकता है। इसी तरह से आप याद रखें,
سجدہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ چیز ثابت ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کا ذکر فرمایا جن کی توبہ اللہ نے قبول کی تھی. ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے. بہت زیادہ عرصے کے بعد, کئی دن بعد اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور ان کی توبہ کے قبول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا. جب حضرت کعب بن مالک کو یہ معلوم ہوتا ہے وہ فوری سجدہ ریز ہو جاتے, اللہ کا شکر ادا کرتے. تو شکرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو حاضرین, اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم تمام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کریں. اور اگر ہم شکر گزاری کرتے اللہ مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب